Thank you, Dhanyavad, Harishi. Yeah. Now, Sri S.R. Balasubramaniam. Sri S.R. Balasubramaniam, you have 8 minutes. 8 minutes. Maiden speech. But I will try to confine myself to 8 minutes. I will try to confine myself. No arguments. I will try to confine myself. Please. He knows what to do. Chairman, sir. Yeah. At the outset, I want to thank our leader, the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchithali Amma, for having made me a member of this House. In fact, I am entering this Parliament as a member after nearly 2 decades. That is, to be precise, it is 18 years. At least now, I have got the recognition because it was Amma who chose me. I thank her again. I am thankful to you and this House for the first opportunity provided to me to record my party's concern about the ever-increasing price rise that affects all the poor and middle classes, but affects more those who live in rural India. One research finding says, in the last 24 months up to June 2016, when urban inflation fell from 9% to 5.3%, rural inflation declined from 10.1% to 6.2%. In the fiscal 2016, rural core inflation was 6.7% compared with 4.8% in urban. Subcategories such as health, education, household goods and services, and recreation and amusement have all recorded higher inflation in the rural areas last fiscal. Amma, our party leader and Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, has initiated and implemented many schemes that mitigate the misery of the poor. The misery is the direct effect of the wrong fiscal policies adopted and implemented by the centre. Despite oil price coming down from $154 a barrel, it is today at a time it reached below $27. Actually, 154, 125. Brent crude was quoted at 125, but the NYMEX crude 115. Again, 115, 105, 95. It steadied at 96. At one stage, it came down to $27, below $27. But that benefit was not passed on to the poor. The benefit was not passed on to the people. That should have been passed on to the people, instead of which actually the petty reductions rarely announced by the oil companies are nothing in comparison to the periodic increases in price affected by these companies. Government of India also rubs salt to the pestering wounds with increase in excise duties. Duties actually the last 1 year, when the prices started coming down, has been increased on diesel by ₹13 57 paise and 11 rupees 57 paise on petrol. And to reiterate my point, let me point out, fuel inflation in rural was 6.8%, more than 2.5 times than the 2.7% in urban. Our party leader, Amma, has been repeatedly writing to the Honorable Prime Minister at every price rise of oil to drop down the increase so that the inflation and increase in price rise of essential commodities, which is a rural offshoot of oil price rise, can be avoided and curbed. We are yet to see concrete action of the centre in this regard. The poor need to cure to poverty, not occasional relief thrown as crumbs to them. Whether it is a fiscal policy of the centre or the way the MSP is delayed for farmers. For example, the coconut farmers, the MSP is not it has been raised by just 6 rupees after 4 years. So, as rightly pointed out by Reserve Bank Governor, there is a lot of frustration about the pace of economic recovery. Central government now has advised the state governments to roll back the taxes on edible oils and pulses. But we have already taken a number of measures. Tamil Nadu has taken already a number of measures. The state government, under the capable and determined leadership of the Honorable Chief Minister, Puratchithali Amma, has against she was the first, on assumption of office in May 2011, she announced and implemented the free supply of 20 kilograms of rice per month through the public distribution system to about 1.83 crore families in the state.
Tamil Nadu's PDS is the best functioning public distribution system in the country. Yes, recognized by many economists and scholars both in India and abroad. The supply of free rice in the PDS has greatly helped the vast majority of families in the state and protected them against the rise in food prices. 1 liter of refined palm oil is supplied rupees 25 and 1 kilogram of each of urad and tur dal are supplied rupees 30 per kg to all cardholders as part of the special distribution system. The state government incurs an expenditure of 1,861 crores on the special PDS out of its own budgetary resources every year. This has been the bulwark protecting the common people in the state against the abnormally high prices of pulses and edible oils in recent months. Actually, the central government was giving about 15 rupees and 20 rupees for subsidy, which has been given a go-by now in the past 1 year or 2 years. It has been given a go-by. Recently, the government of India imported 5,000 metric tons of unmilled tur dal and offered it to the states. Tamil Nadu was the first state to lift 1,000 metric tons. This quantity was processed and supplied through the cooperative network at 110 rupees per kg. Through the cooperative network, fresh farm vegetable outlets have been established in large cities in the state to ensure that free vegetables sourced directly from farms are sold in many outlets. Amma Canteens scheme, a brainchild of the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Purochithiri Amma, which is now renowned across the world and studied by governments and experts from different parts of India and the world, has also had a salutary impact on keeping a check on food price in Tamil Nadu. In Amma Canteens, idlis with sambar is supplied rupees 1 a piece, and curd rice at rupees 3 a plate, and sambar rice at rupees 5 a plate. There are a number of other commodities which are also supplied at reasonable price in Tamil Nadu. I specifically quote something. For example, patients are being fleeced by the corporate hospitals. In the same way, the pharmacists are also doing the same thing. To bring down the prices and offer it to ensure that it is ensured that are kept in reasonable prices. 84 pharmacies have been opened all over Tamil Nadu. It is now with a minimum of 15% discount on medicines below MRP. Mineral water, Amma salt, Amma cement products which ensure availability at reasonable prices of commodities prone to price increase due to catalyzation of other factors. VAT on domestic LPG has also been completely exempted to ensure that price of domestic LPG is kept reasonable in spite of deregulation of LPG prices. What can the government of India do to bring down the prices and protect the poor? Subsidize food items including pulses and edible oil. Roll back the additional excise duty levied on petrol and diesel announced earlier in this year. That is 13 rupees 57 paise has been levied on diesel and 11 rupees 57 paise has been levied on petrol. That should be rolled back. Enable cheaper movement by rail by reducing the freight rates for essential commodities. Reduce the toll fee collected from freight vehicles. The government of India has announced it intends to double the income of the agriculturists by 2022. In that case, provide adequate input subsidy to farmers to encourage production of pulses and oilseeds with assured price at pure purchase mechanism. Paddy price, nowadays they have announced the minimum support price. In the other commodities also they have announced. But the coconut farmers, why the government is keeping such a, they don't recognize them at all. Actually, it was 53, minimum support price for that was 53 rupees 50 paise, some 4 years back. In the 4 years, in the long run of the 4 years, it actually only 6 rupees, 2 rupees plus 4, 6 rupees, that is 59 rupees 50 paise has been fixed as the minimum support price. And the minimum support price also, they are not getting because of the norms prescribed. For example, it is moisture content must be below 6%. It's very difficult to supply moisture content with copra supply to 6%. So I want the government to norms to procure must be liberal. It must be 7.5% of moisture. That is the best thing. And another thing, they can buy coconuts directly. Dehusked coconuts
1 kilo at 24 rupees. That will also satisfy the coconut farmers to a bit. Coconut farmers actually are demanding 100 rupees a kilo. But even if it's not given 100 rupees, at least it must be made 75 rupees a kilogram for a kilogram, and it must be procured by the government at the this is the motion today. Actually, the price of DAP, the price of potash, the price of complex L, all have gone up. So the government must be liberal in giving the minimum support price to all the farm produce. Thank you. Thank you. Now message from Lok Sabha Secretary General. Secretary General, message from Lok Sabha. I beg to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 27th of July 2016 passed the Lokpal and Lok Ayukt's Amendment Bill 2016. I lay a copy of the bill on the table. Shri Harivansh ji. माननीय उपाध्यक्ष जी, आभारी हूं आपने मूल्य वृद्धि पर हो रही अल्पकालिक चर्चा में शामिल होने का मौका दिया। मेरा आग्रह है कि यह सरकार मान ले कि हमारी आर्थिक व्यवस्था में जो बुनियादी चुनौतियां हैं उनके हल करने का सामर्थ्य इस सत्ता पक्ष के पास नहीं है। इसका समाधान यह सरकार नहीं ढूंढ पाएगी। हालांकि हमें उम्मीद नहीं थी कि यह सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी चुनौतियां हल कर पाएंगी, पर देश ने सत्ता पक्ष के इस आश्वासन को कि अच्छे दिन आएंगे पर भरोसा किया। आज 2 वर्ष निकल गए, अब सिर्फ 3 वर्ष ही बचे हैं। हमारी तरफ एक कहावत है, पूत के पांव पालने में, यानी इन्होंने दिखा दिया कि इंडियन इकोनॉमी के चैलेंजेस को बातों से सिर्फ यह हल कर सकते हैं, इनमें सामर्थ्य और क्षमता नहीं है कि चीजों को यह नियंत्रित कर सके। और मैं यह क्यों कह रहा हूं? केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक इन्फ्लेशन के मापदंड के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई को प्रतीक मानते हैं। इसमें खाने पीने की चीजों का भाव पता चलता है। अप्रैल 2016 से जून 2016 के बीच सीपीआई इन्फ्लेशन इंडेक्स 4.8% से 5.8% बढ़ा है। इतना ही नहीं, मैं सरकार के आंकड़े बताना चाहूंगा। सौजन्य उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय 7 से 14 जुलाई के 2016 के बीच चीजों के भाव क्या थे? गोरखपुर में टमाटर 65 रुपए प्रति किलो, आइजॉल आलू 35 रुपए किलो, प्याज 40 रुपए प्रति किलो, भटिंडा मूंगफली तेल 171 रुपए प्रति किलो, तुअर दाल 170 रुपए प्रति किलो, पणजी उड़द की दाल 190 रुपए प्रति किलो, सरसों तेल 179 रुपए प्रति लीटर, उदयपुर मसूर दाल 110 रुपए प्रति किलो, पोर्ट ब्लेयर चीनी 50 रुपए प्रति किलो, मैसूर चावल 45 रुपए प्रति किलो। ये सारे आंकड़े हमारे नहीं बल्कि इस केंद्र सरकार के आंकड़े हैं कि आलू प्याज टमाटर के भाव कैसे बढ़े। सारे उपायों के बाद चीनी कैसे अनियंत्रित हो रही है, दाल के भाव कैसे अनियंत्रित हो रहे हैं। मैं 2 खबरों का उल्लेख करना चाहूंगा जो देश के सबसे बड़े अखबारों में सुर्खियों के रूप में आए। 15 जुलाई 2016 थोक महंगाई भी 20 माह की ऊंचाई पर पहुंची। 14 जून 2016 रिटेल महंगाई ने छुआ 21 माह का उच्चतम स्तर। अभी हम लोगों ने बहुत सारे आंकड़े सुने सत्ता पक्ष से, मैं कुछ आंकड़े देकर आपको बताना चाहूंगा कि खुदरा महंगाई बीते 22 महीने के उच्चतम स्तर पर 5.77% पहुंच गई है। दाल 26.86% कीमत वृद्धि, चीनी 16.79% कीमत वृद्धि, सब्जियां 14.74% कीमत वृद्धि, मसाले 8.61% कीमत वृद्धि, मांस मछली 6.60% कीमत वृद्धि। 2 साल में अरहर के दाम में दोगुनी वृद्धि, उड़द के दाम में 120% वृद्धि। ये सारे सरकार के द्वारा दिए गए आंकड़ों की स्थिति है। वास्तविक स्थिति इससे और अधिक गंभीर है। और यह सरकार लगातार बात करती है कि हम गांवों के लिए और गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि शहरों की तुलना में गांवों में महंगाई बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज है। उन चीजों के भाव वृद्धि को मैंने याद दिलाया जो रोज की थाली का हिस्सा है। यह सरकार लोगों से रोज खाने की थाली तो छीन ही रही है, ऊपर से इस महंगाई की मार जो सबसे अधिक गरीब गांवों के हैं उन पर है। यह कैसे? गांवों में रिटेल महंगाई की दर 6.45% से बढ़कर 7.24% हो गई है। मैं और तथ्य न रहकर कहना चाहूंगा कि जब महंगाई का ग्राफ नीचे होता है
तो श्रेय केंद्र सरकार लेती है, पर कीमतें बढ़ने पर दोष डालने के लिए राज्यों की बात करने लगती है, जबकि यह शुद्ध रूप से अर्थनीतियों से जुड़ा मामला है और अर्थनीति केंद्र सरकार के हाथ में है। मैं आपके माध्यम से कुछ सवाल सरकार के सामने रखना चाहूंगा। क्यों ऐसा होता है कि फसलों या सब्जियों के भाव बढ़ते हैं पर किसानों को इस भाव वृद्धि का लाभ नहीं मिलता? क्यों बीच के लोग इसका लाभ उठाते हैं? केंद्र सरकार की अर्थनीतियां क्यों इनके सामने असहाय लाचार दिखती हैं? टेक्नोलॉजी और चुस्त गवर्नेंस के इस दौर में इसका क्या समाधान अब तक सरकार निकाल पाई है? मैं याद दिलाना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2014 के चुनाव घोषणा पत्र में किसानों को उनकी उपज का लागत का 1.5 गुना दाम दिलाने का वादा किया था। उस वायदे का क्या हुआ? तीसरी बात, किसानों के लिए कितना दर्द है इस सरकार में, उसका उल्लेख मैं करना चाहूंगा। किसानों के लिए सरकार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 60 रुपए प्रति क्विंटल की मामूली वृद्धि की। यह शुद्ध रूप से किसानों के साथ घोर अन्याय है और किसानों को वोट लेने के लिए कैसे चुनाव में उनको भ्रम पैदा किया गया, ये स्थिति आज देश देख और समझ रहा है। मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र में महंगाई पर नियंत्रण के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाने की बात की थी। इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं, मैं सरकार से जानना चाहूंगा। अगली बात, फाइनेंस बिल 2016 में इस संसद से पास हुआ। इसका काम मॉनेटरी पॉलिसी को नियंत्रित करने के लिए कमेटी बनाने का था। इसका मूल काम इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और रेपो रेट तय करने का है। जून 2016 में इसका गठन हो पाया है। अभी तक इसने महंगाई नियंत्रित करने के लिए क्या काम किया, क्या कदम उठाए, इसकी सूचना नहीं है। कहना चाहूंगा कि महंगाई पर जिन्हें दर्द है, उन्होंने सरकार के 2 वर्ष होने पर भव्य आयोजन किए। अगर सचमुच महंगाई से दर्द था, सूखे में 2 वर्ष जो गुजरे, किसानों की आत्महत्या बढ़ी, तो सरकार को इवेंट मैनेजमेंट से नहीं चलाना चाहिए था, बल्कि उस इवेंट मैनेजमेंट का पैसा किसानों के बीच लगाना चाहिए था, गरीब इलाकों में खर्च करना चाहिए था। दूसरी ओर यह हालत है, सरकार के आंकड़े बताते हैं कि रोजगार नहीं बढ़ रहा, मैन्युफैक्चरिंग की हालत खराब है। इस बीच आपने 7वां वेतन आयोग भी लागू किया, यानी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में आप समृद्धि का नखलिस्तान खड़ा कर रहे हैं, पर इसके बाहर बहुसंख्यक गरीब और हाशिए पर है, वंचित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जिनकी आमदनी नहीं बढ़ रही। मैं अंत में यह आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में बहुत तेजी से सामाजिक विषमता बढ़ रही है, गरीबों की हालत दयनीय है, महंगाई अनियंत्रित है। इस सामाजिक तनाव की स्थिति में आग में घी का काम कर रही है महंगाई। इस आग की आंच अभी सरकार तक पहुंच रही है, पर महंगाई की लोक आंच में व्यवस्थाएं, सरकारें भस्म होती रही है। यह बात यह सरकार जितनी समझ ले उसके हित में है, देश हित में है और लोक हित में है। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री दिलीप तिरके जी। थैंक यू सर। हम हर बार हर सेशन में हम महंगे के ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन महंगे का कभी कम नहीं होता या महंगे दर कभी कम नहीं होता। इससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है। महंगे को लेकर जब तक हम एक परमानेंट पॉलिसी या स्थायी पॉलिसी नहीं बनाएंगे, इससे कोई हमें फायदा नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। महोदय, महंगाई दर को लेकर इस सरकार ने 2 साल पहले काफ़ी वादा किए थे और महंगाई घटाने के बाद कह रहे थे, घटाने के बजाय महंगाई बढ़ गई है। यहाँ तक सिर्फ कंज्यूमर में नहीं, साग सब्जी, वेजिटेबल, डिफरेंट सब आइटम में बढ़ गया है। मैं 4 साल से दिल्ली में हूँ, इवन यहाँ डायरी में भी काफ़ी बढ़ गया है। एक दिन था कि वीकली हमारा राशन 400-500 रुपीज़ में गुजारा हो जाता था, लेकिन आज के तारीख में वीकली 1200 से 1400 के बीच में हमें राशन खरीदना पड़ता है। जो दालन को जो समस्या हमारे देश में है, हम सबको मालूम है, लेकिन सरकार को अब सोचनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दाल इंपोर्ट करके हमारे मार्केट में ज़रूर पहुंचाएं। नहीं, हमारे जितने भी
छोटे वर्ग के लोग हैं या चासी मूल्य लोग हैं, पर डे 150 रुपीज़ कमाते हैं, कहाँ से दाल खरीद के सब्जी खरीद के जी पाएंगे। महंगाई का कम नहीं होने का मुख्य कारण ये है जो फायदा हमारे कंज्यूमर को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम में टैक्स नहीं घटाया गया है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में पर बैरल था $130, लेकिन अब घटकर हो गया $47, इससे भी कम था पहले $30। तो इससे भी हमारे जो कॉमन लोगों को कुछ फायदा नहीं हो रहा है। अभी भी कहीं जाते हैं तो वही महंगाई का सामना करना पड़ता है। महोदय, हमारा ओडिशा एक बहुत अच्छा काम किया है। मेरे ख्याल से जितने भी राज्य हैं, सबसे पहला राज्य हमारा ओडिशा है जो कि पेट्रोलियम टैक्स कम किया है। मेरे ख्याल से हमारे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अच्छा काम कर रहे हैं, और भी कई सारे राज्य हैं, वेस्ट बंगाल और हमारे कई सारे राज्य हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। इससे मेरे ख्याल से आपको देखना चाहिए, सीखना चाहिए। आखिर में मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे जितने भी गरीब या लोअर इनकम वाले लोग हैं या एवरेज इनकम वाले लोग हैं, उनके पास प्रॉपर में कैसे सामान पहुंचाया जाए, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। श्री अशोक सिद्धार्थ जी, अशोक सिद्धार्थ जी। श्री प्रफुल्ल पटेल जी, श्री KTS तुलसी जी, डॉक्टर नरेंद्र यादव जी। Thank you. Thank you. Thank you, sir. Sir, inflation is the most iniquitous form of taxation because it hurts the poor the most. The headline CPI inflation year on year has turned to about 5.77% in June 2016, up from 4.83% in March. The CPI inflation was mainly driven by food inflation, which registered an acceleration for the third successive month. Food and beverages subgroup recorded the largest price pressures year on year at 7.4%, driven by vegetables whose prices rose by 14.7% month on month, and also in protein-rich items, sugar, spices, and cereals. Sir, I would like to talk about the 5 factors which are responsible for the recent spurt. The rise in retail inflation in the recent period is due to more than seasonal jump in food prices. Basically, what has happened, sir, is that the demand-supply imbalance generated by shortages in domestic production, induced by 2 consecutive years of deficient monsoon, have led to a gradual aging of inflation. With production trailing demand in recent years, shortages of essential commodities have widened. For example, inflation in respect of pulses has remained very high because the production of pulses has fallen for the second consecutive year. The second factor responsible for the recent spurt, sir, is that the leakages and inefficiencies in the food management system and inadequate supply chain management have also led to the price spiral. The MSP policy, which was highly skewed in favor of rice and wheat, have discouraged the other key items, leading to shortfall in their production. Third, the hoarding and speculative activities by the middlemen have created artificial scarcity in some commodities. The benefit of high prices paid by consumers does not flow back to primary producers, that is farmers, but it is siphoned away by middlemen and speculators who enjoy a free run in an economy of shortages. The fourth reason, sir, fourth factor, is that the infrastructure for post-harvest management of farm products to ensure
proper storage and smooth supply to market is quite weak in our country. India, sir, is world's largest producer of fruits and vegetables, but the shortage and transportation losses for several crops are estimated to be around 30 to 40%. Unfortunately, there is no silver line on the side. Although we say that the satisfactory monsoon this year and a reasonable spatial and temporal distribution of rainfall along with various supply management measures should moderate the unanticipated flares in food inflation. Nevertheless, I would like to warn this August House that there are several upside risks. Particularly, there is an uncertainty over oil prices and there is the issue of implementation of the 7th Central Pay Commission awards. The Reserve Bank report on monetary policy in April 2016 has shown that the direct impact on inflation of the 7th Central Pay Commission recommendations is expected to be about 1.5 percentage points, and the indirect effect is going to be around 40 basis points or 0.4%. This is very significant. Sir, I would like to talk about very briefly about 7 remedial measures in quick succession. The first one is that stringent measures, sir, are required, particularly by the state governments, to crack down on speculative holding activities. Second, monitoring of commodity derivatives trading, which may at times fuel the speculative spiral in prices, is required, sir, to put in place appropriate regulations. Third, improving the food management policy by proactively releasing the food stocks of essential items, plugging the leakages and ensuring their availability, that is to say, releasing additional stocks from government warehouses for supplies to the state governments is imperative. The Food Corporation of India could also undertake open market sales wherever feasible. At the same time, it is imperative to increase the offtake through existing public distribution system. Sir, this would keep in check the price pressure and also ensure more equitable distribution and food security. Quickly, sir, going forward, efficient the bullet points only, only bullet points. Yes, sir. Yes, sir. Going forward, efficient market infrastructures, improved storage capacity, and faster transportation from producers to customers are the vital area that need greater attention. Sir, the transformation of agriculture has to be steered by raising productivity in agriculture by investing in efficient irrigation technology. It is equally important to gradually move away from the cereal-centric MSP policy towards other items with supportive policy framework and required infrastructure. So the policy interventions are required to support sustainable growth in crop production and environmental protection through development of improved and diversified cultivation, eco-friendly and cost-effective pest management practices, efficient seed supply systems. One final point, sir. The rebalancing of the government expenditure needs to be pursued by staying on the path of fiscal consolidation. Going forward, finally, sir, a strong monsoon continued with astute food management as well as steady expansion in supply capacity, especially that in services, could help offset these upward price pressures. Thank you. Thank you very much. Thank you. Oh, after this article is completed, he will be called. He will be called. Please wait. He will be called. Shri Sanjay Raut ji, Sardar Balwant Singh Bhundat ji, Shri D Raja ji, Shri R.S. Bharti ji, Shri Pramod Tiwari ji. Sir, Sorry. He is there. Sir, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on the issue of price rise, sir. First and foremost, I would like to thank my beloved leader, Dr. Kalaignar, for reposing faith in me and electing me to the Council of States. I also acknowledge the leaders of Dravidian movement, including our great Anna, who paved the path in this very house for someone like me. Sir, through you, I would like to assure the people of Tamil Nadu that I will represent them to
to the best of my ability and raise the voice of the state at every opportunity. Sir, many of them have spoken about the cause for the rise in prices, sir. In my opinion, sir, I would like to say the main reason for the price rise is the rise in price of fuels, because agriculturists depend upon fuel. Common people depend upon the gas for cooking. So, I would request the central government to pay special attention to bring down the cost of the fuel, which has caused great inconvenience to all sections of the people. Sir, I would not take much, sir. I would like to make 3 points. I would suggest 3 points. And I would request the state government to give special consideration for these 3 points, sir. I take this opportunity to suggest 3 easy measures for the government of India to consider while tackling the price rise. Number 1, sir, checking of holding. Take swift action against those who indulge in large-scale holding of essential commodities. The union government needs to evolve a dedicated, multidisciplinary agency to investigate, prosecute and prevent those who are hoarding food grains and vegetables for the sake of making windfall profits. I urge the government to report to the Parliament on the action taken in this regard, at least during the next session. The second point, sir, improve storage capacity. Sir, an RTI reply filed by Times of India has revealed that nearly 20,000 tons of food grains stored in the Food Corporation of India godowns were wasted for rotting in 1 year, sir, that is 2014 to 15. In 1 year alone, 20,000 tons of food grains were wasted by the Food Corporation of India. Sir, in this respect, I would also like to submit, we hear that 60% of the children in India are going to bed hungry. At this stage, sir, can this be accepted? 20,000 tons being wasted, and at the same time, 60% of our children go to bed hungry. This cannot be accepted, sir. The government has to show special attention towards the Food Corporation of India, at least in future. We have to improve our food storage facilities and improve the supply chain management so that wastage is minimized. Last but not the least, sir, I will request the central government to expand the Udavar Sandai scheme in order to benefit farmers and consumers equally and remove the menace of middlemen. 2006 to 2011, my leader, Dr. Kalaignar, who was the Chief Minister of Tamil Nadu, introduced a novel scheme known as the Udavar Sandai, that is farmers market, across Tamil Nadu. This reduced the prices of essential commodities and provided good returns for the farming community as well. I urge the government to introduce such farmers markets in every district in the country, sir. With this I conclude. Once again, I would like to thank you. Thank you. Sri Pramod Ji Tiwari. सर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर श्री रघुराम राजन कह रहे हैं। चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि कोई बताए महंगाई कहां कम हुई। महंगाई बढ़ी है, तो जब इनकी सरकार में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कह रहा हो कि महंगाई बढ़ी है, महंगाई कम नहीं हुई है, तो उसके बाद इस सरकार का नैतिक कर्तव्य यही था कि जब ये बोलते तो यही कहते, हां महंगाई बढ़ी है लेकिन हम महंगाई कम करेंगे। लेकिन इनकी समस्या एक है, अभी जब जितने वक्ता बोल रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं इस राज्य को समझना चाहता हूं। इधर जितने लोग बैठे हैं सरकार के इधर, सबको बाजार में आम जन में महंगाई दिख रही है, पर जैसे ही सत्ता पक्ष शुरू होता है साहब, इन्होंने पता नहीं कौन सी संजीवनी पी रखी है कि इनको महंगाई दिखती नहीं। मैं वो फार्मूला इनसे जानना चाहता हूं कि क्या बात है कि आपको महंगाई दिखती नहीं है।
है महंगाई, ये सब मानते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सावन का महीना चल रहा है, आप तो जानते हैं, सावन के महीने में सब अंधे को हरा हरा दिखाई पड़ता है। तो जब तक बैठे हो देख लो, तुमको महंगाई नजर नहीं आ रही है। जब जनता के बीच में जाओगे तो दो ही समस्या है इस समय इस देश में, एक आतंकवाद और दूसरी महंगाई, और दोनों में आप 0/0 हो, फेल हो गए हो, महंगाई रोक नहीं पा रहे हो, ये सच्चाई है। आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा, आंकड़ा है, बढ़ गई, 75.8% पे पहुंच गई। यहां पे महंगाई अगर बढ़ जाती तो हम मान लेते महंगाई बढ़ गई, लेकिन मेरा चार्ज है, मेरा आरोप है सीधा साधा सरकार पर। जो इस देश में महंगाई बढ़ी है वो महंगाई आम किसान ने, व्यापारी ने नहीं बढ़ाई है। ये महंगाई भारतीय जनता पार्टी की, हिंदुस्तान की सरकार की बढ़ाई हुई महंगाई है। आप आते ही 16% रेल भाड़ा बढ़ा देते हो तो महंगाई नहीं बढ़ेगी तो क्या कम हो जाएगी? आप आते हो तो आप सबसे पहले सर्विस टैक्स लगा देते हो। सर्विस टैक्स जब लगाओगे तो जिस चीज की भी सर्विस होगी उस पर टैक्स तो बढ़ ही गया, तो महंगाई बढ़ गई। आप आते हो तो कुछ नहीं करते हो, मोदी जी भाषण देते हैं 15 अगस्त को सफाई होनी चाहिए, और उधर भाषण देते हो, इधर आप सर्विस सफाई टैक्स लगा देते हो। आप तो हर चीज पर टैक्स लगा देते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं पीठासीन अधिकारी जी, मुझे तो ऐसा लगता है अगर वो दिन दूर नहीं जिनका बस चले तो हर सांस पे आप टैक्स लगा दोगे, यही बाकी रह गया है, वरना तो आप हर चीज पर टैक्स लगा देते हो, और आपके लगाए टैक्स पर ही महंगाई बढ़ रही है। मैं आज आपसे कहता हूं, आज का जरा सा आप रेट देख लो जो बाजार में पेट्रोलियम का है, और उसके हिसाब से आप देख लो क्या कर रहे हो। क्रूड ऑयल का रेट आज बाजार में है 42 पॉइंट पर डॉलर, और आप बेच कितने पे रहे हो? डीजल 54.33 पर लीटर और पेट्रोल 63.2 पैसा। तो ये महंगाई कौन बढ़ा रहा? यूपीए की सरकार थी, 110, 115, 120 डॉलर पर बैरल पे खरीद के हमने बेचा था यही 50-55 पे, और आप बेच रहे हो 42 डॉलर पे खरीद के। तो महंगाई कौन बढ़ा रहा है? सीधे साधी सी बात है कि आप मुनाफाखोरी कर रहे हो, आप खुद जनता के जेब पे डाका डाल रहे हो, आप गुनहगार हो जो सस्ता खरीद के महंगा बेच रहे हो, आम जनता पे महंगाई का बोझ पड़ रहा है। ये मैं सीधा आरोप आप पे लगाता हूं। अगर हिम्मत है तो खड़े होकर कह दीजिएगा कि हम कल से बाजार रेट पे बेचेंगे, तो शायद थोड़ी बहुत राहत मिल जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं कि जब भारत में महंगाई बढ़ रही है, तो अभी रजनी जी कह रही थी बोलते हुए कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो रजनी जी को शायद मालूम नहीं है, जब देश महंगाई में जल रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री जी ड्रम बजा के महंगाई कम कर रहे थे विदेश में। शायद उस ताल में कम हो जाए महंगाई, तो इसमें कौन सी बात है? ये किसी भी हालत में नीरो से कम नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, घर में जाते हो कि नहीं जाते हो? कभी बीबी से पूछना दाल कै रुपए भाव मिली है? 75 रुपए हमारी दाल थी तो आप सड़क पे हो, और 210 रुपए की दाल खरीद के आप घर के अंदर बैठे हो। आप सोचो जरा सा क्या हालात आज के हो गए हैं। हाँ, एक चीज जरूर है, आप बात तो बड़ी लंबी लंबी करते हो, लेकिन आपका रिश्ता कुछ है। मुर्गी सस्ती, दाल महंगी, अंडा सस्ता, आलू महंगा। इरादा क्या है आपका? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं आपसे बात करूं, अगर आपसे एक एक चीज पर आपसे बात करना चाहता हूं, तो ये जो महंगाई बढ़ रही है, आपकी बढ़ाई हुई महंगाई है। मैं आपसे एक बातें जरूर कहना चाहता हूं, खास तौर से इस महंगाई पर नियंत्रण हो सकता है। आप देखें, किसान को जो आप रेट देते हो बाजार में, ये मैं कह रहा हूं इसलिए कि सरकार से बड़ी घोटालेबाज सरकार आज तक कोई पैदा नहीं हुई है आजादी के बाद की। किसान को आप जो कहते थे कि हम 50%, 50% बढ़ा के देंगे, वो आपने दिया नहीं। उसको जो पैदावार करता है उसका दाम नहीं मिलता है। पर बाजार में आते आते ये महंगाई क्यों बढ़ जाती है? मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। दाल 50 रुपए में किसान बेच रहा है, बाजार में 200 रुपए आई, तो ये 150 रुपए कौन खा रहा है? ये डिफरेंस किसके पास जा रहा है?
मैं बताता हूं कहां जा रहा है। छापा पड़ा बंबई में, 70% दाल रिकवर हुई बंबई में काले बाजारी और चोर बाजारी में। उनके घर से जो रसीद मिली उसमें उन्होंने टैग दिया था चंदा आपको। तो ये क्या चंदे के एवज में आप महंगाई बढ़ा रहे हैं? किसान को उतना ही मिल रहा है और उपभोक्ता को ज्यादा देना पड़ रहा है, इसके बीच में महंगाई क्यों बढ़ रही? आप कहते हो पैदावार कम हुई, मैं कहना चाहता हूं 5% अकेले दाल की पैदावार कम हुई है और रेट बढ़ गया 100%। क्यों? मेरा सीधा साधा आरोप है कि आपके राज्य में वेल्थ टैक्स तो कम करते हैं आप, और गरीब पर लगने वाला टैक्स आप बढ़ाते हैं, क्योंकि आप गरीबों के विरोधी हैं। सर, हम तो गरीबों की बात कर रहे थे, आपकी पार्टी भी तो गरीबों की बात करती है। आपका पार्टी का तो और 2 मिनट दे दिए, और 5 हम बात कर लेंगे सर। सुनिए, कलकत्ता बात कर नहीं लेंगे। सुनिए ना, आपका पार्टी का और 5 स्पीकर है सर, वो बात उनसे कर लेंगे सर, पर आप तो हमारे आपका टाइम ओवर। माय रेस्पेक्टेड आप बोलिए 1 मिनट, लेकिन आपका टाइम ओवर। इतने में तो हो गया था 2 मिनट सर। मैं एक बात कह के खत्म करना चाहता हूं। मेरा यह कहना है, इस सरकार के आने के बाद एक ही तबका खुश हुआ है, वो पूंजीपतियों का। ये जब टैक्स कम करना होता है, कर्जा माफ करना होता है, तो जिन लोगों के हवाई जहाज पर बैठ के ये घूम रहे थे, उनका एक झटके में ये 2000 करोड़ माफ कर देते हैं। और अगर हमारा किसान जिस पे बकाया है वो देने में 15 मिनट की देर कर जाए तो उसे जेल भेज देते हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं, ये आपका कौन सा फार्मूला है कि आपका पूंजीपति तो आराम से रह रहा है, सुखी है, और हमारा किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? आप मुझे 1 साल का फिगर आजादी के बाद से दे दीजिए, मैं चुनौती दे रहा हूं, मेरे बाद बीजेपी को बोलना है। कोई साल बता दो जिस साल किसानों ने इतनी आत्महत्या की हो जितनी आपके यहां 2 साल के अंदर किया है। मैं तो आपको चुनौती देता हूं। तो किसान मर रहा है, गरीब मर रहा है, आम आदमी मर रहा है, सरकारी कर्मचारी मर रहा है। अगर कोई हंस रहा है तो इस समय भाजपा सरकार में बैठे हुए मंत्रियों पे महंगाई की मार नहीं है, वरना आम जनता पे महंगाई की मार है। मैं आपसे सिर्फ विनम्रता पूर्वक एक बात कहकर समाप्त करना चाहता हूं, और बिल्कुल समाप्त कर दूंगा, इसके बाद टाइम नहीं मांगूंगा। मैं पूरी तरह से सीधा साधा इल्जाम लगाता हूं कि इस देश में आज की बढ़ी हुई महंगाई का जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसकी नीति, उसके संरक्षण में पलने वाले जवाखोर और कालाबाजारी करने हुए लोग। आज इनका एक गठबंधन है, एक अपवित्र गठबंधन है इनका जमाखोरों और कालाबाजारियों का, जिसकी वजह से बाजार में महंगाई बढ़ रही है, और इसके लिए ये जिम्मेदार है। और आप मेरी बात से जब यहां बैठेंगे तो सहमत हो जाएंगे। धन्यवाद। एक बात है, आपको मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं, आपने जो सावन का अंधा बोला, सावन का अंधा बोला ना आपने, वो अनपार्लियामेंट्री है, दैट विल बी एक्सपांडेड। As per the book, that is unparliamentary, and I have been advised to inform you that will be expunged. सर let me सावन का अंधा को सिर्फ हरारा दिखाई देता है, ये कहावत है। ये अनपार्लियामेंट्री है। मैंने इनको as per the book that is unparliamentary. Okay, that will be expunged. Sri Sawet Malik. ऑनरेबल सर, मुझे बड़ा अचरज हुआ ये देखकर कि जिन्होंने लंबा शासन किया 60 वर्ष तक, वो आज कह रहे हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे। कि इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता था कि देश की जनता ने आजादी के बाद लंबा शासन करने का सुअवसर सामने बैठे माननीय सदस्यों की पार्टी को दिया, और वो आज ये कह रहे हैं 2 वर्ष की सरकार से कि अच्छे दिन कब आएंगे। और मैं ये समझता हूं कि इनका विश्वास अपनी सरकारों में नहीं था। मैं ये मान के चलता हूं कि इनका विश्वास अपनी पार्टी और सरकार से उठ गया था। अब इनका सरकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए में है, इनको भी मालूम है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तभी मांग रहे हैं अच्छे दिन कब आए।
आज जो ये निर्णय हुआ लोकसभा का चुनाव में, जो एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ लोकसभा का चुनाव में कि बहुत वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को देश की जनता ने एक ऐतिहासिक जीत दी है, तो उसके कारणों में जाना बहुत जरूरी होगा कि जो सामने बैठे मित्रों की पार्टी की एक जबरदस्त पराजय हुई, तो उसके कारण क्या थे। daughter-in-law and सब्सक्राइब this should be अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9260792607 पर मिस्ड कॉल दीजिए। स्कूल की पढ़ाई में बीत जाता है टाइम, अब घर आकर बनाओ हल्की रियलिस्टिक ड्राइंग्स। कूल एक्सपेरिमेंट से अब साइंस को समझो और प्ले डो से बनाओ ब्यूटीफुल डिजाइन्स, क्योंकि अब एक्टिव फन लर्न के इंटरेस्टिंग गेम्स, पजल्स और इंटरैक्टिव सेशंस के साथ होगी बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बस खेल खेल में। एक्टिव फन लर्न अब मिल रहा है सिर्फ ₹2 प्रतिदिन पर। सब्सक्राइब करने के लिए आज ही अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9260792607 पर मिस्ड कॉल दीजिए। स्कूल की पढ़ाई में बीत जाता है टाइम, अब घर आकर बनाओ हल्की रियलिस्टिक ड्राइंग्स। कूल एक्सपेरिमेंट से अब साइंस को समझो और प्ले डो से बनाओ ब्यूटीफुल। जब देश का मानो विश्वास उठ गया था शासन से, उस समय आके देश को संभाला और उस देश का नाम आज सारी scope to produce crore of है। ये वो मोदी जी है close to 6 क्रिएट किया, हर पक्ष को देखा। आज महंगाई के लिए, एक दाल के लिए जो कि एक क्रॉप जो है वो मौसम के ऊपर है, वो ठीक हो जाएगी, इनको भी मालूम है कि उसका कारण क्या है, तो उसके कारण ठीक हो जाएगी। इनको बाकी चीजें नजर नहीं आ रही कि जो बाकी चीजें क्या कारण है कि जितने सर्वे हो रहे हैं 2 वर्ष के शासन के बाद भी मोदी जी जो है वो सर्वप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में सब सर्वों में उभर के आ रहे हैं। सो बातें करने से नहीं होगा। अगर जनता आपके साथ होती, मैं आ रहा हूं उसमें, अगर जनता आपके साथ होती, मैं महंगाई पे जनता उनके साथ होती, तो ये निरंतर हार का सामना नहीं करना पड़ता। जो सरकार ने महंगाई के ऊपर जो ऐतिहासिक कार्य किया है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, तो मैं उसका विवरण देने जा रहा हूं। जो अनियन के लिए एक्सपोर्ट ऑफ अनियन वर रिस्ट्रिक्टेड थ्रू imposition of minimum export price when prices were rising high. Retail sale of onion was undertaken from the stock held by NAFED and other organizations. Imported 2,000 metric ton of onion from Egypt and China through, as no demand from state was received. The stock limit, just a minute. इसके बाद जो दालों के लिए जो किया गया, एक्सपोर्ट ऑफ ऑल पल्सेस इज बैंड। Import of pulses are allowed at 0 import duty. Stock limit on pulses extended. Government imported 5,000 metric ton of tur from the other countries. तो मैं तो छोटा डाटा दे रहा हूं कि इंपोर्ट भी घटाई गई, रिजर्व भी बढ़ाया गया। भाई प्रभात झा जी ने डिटेल में सब बताया, आपके आंकड़े भी और हमारी सरकार के प्रयास भी। तो सरकार
चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे दालें हो, चाहे ऑयल हो, चाहे और मूलभूत की जो सुविधाएं हैं, उनका मूल्य नियंत्रण करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। सो आपको सहायक होना चाहिए कि एक अच्छी सरकार वो काम कर रही है जो आप 60 वर्ष तक नहीं कर सके। पर मैं ये मान के चलता हूं कि इस प्रकार के विरोध से ना तो मोदी जी का मनोबल घटेगा, ना सरकार का मनोबल घटेगा, और जो असली निर्णायक है इसमें वो है भारत की जनता। तो बार बार जो चुनाव अब भी हुए, सामने पक्ष को मिल रहा जो जनमत है, उससे यह सिद्ध होता है कि जनता क्या सोच रही है। जनता को पूरा विश्वास है कि यह देश श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में परम वैभव पर पहुंचेगा और एक बार जो विश्व शक्ति बनने का जो हर भारतवासी का सपना है वो अवश्य पूरा होगा। धन्यवाद। श्री अशोक सिद्धार्थ जी। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय, मुझे मूल्य वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं माओवादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय बहन जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से दलित परिवार में पैदा हुए बेटे को देश के सर्वोच्च सदन में बोलने और बैठने का अवसर प्रदान किया। मानवर, आज महंगाई जैसे लोक महत्व और महत्वपूर्ण विषय पर मैंने सदन के सम्मानित सदस्यों की बात को बहुत गंभीरता से सुनने का काम किया और शायद जब से मैंने होश संभाला, राजनीति में जब से मेरी रुचि बढ़ी, तब से इस देश में महंगाई पर, गरीबी पर, बेरोजगारी पर और देश की सामाजिक गैर बराबरी की व्यवस्था पर सदन और सदन के बाहर चर्चाएं होती रहीं। लेकिन चर्चाएं केवल चर्चाओं तक सीमित रहीं। आज आजादी के 59 वर्ष हो गए, 69 वर्ष हो गए। इन 69 वर्षों में शायद ही कोई ऐसा बजट सेशन गया हो, कोई वैसा सत्र रहा हो जिसमें महंगाई पर, गरीबी पर, बेरोजगारी पर चर्चा ना हुई हो। लेकिन महंगाई के कारण क्या हैं, आज तक उसकी तह में जाने की कोशिश किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं की। मान्यवर, मैं सदन के सामने अपनी विचार रखना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि महंगाई केवल रोजमर्रा की वस्तुएं, दाल, टमाटर, प्याज, आलू, खाद, बीज, डीजल, पेट्रोल जैसी वस्तुओं के बढ़ने के कारण जो हमारे सदन में गिनाए जाते हैं, इनके अलावा भी कुछ कारण हैं। महंगाई का जो सबसे बड़ा कारण जो मुझे नजर आता है, उसका सबसे सीधा साधा संबंध गरीबी और बेरोजगारी से है। जब तक हम गरीबी और बेरोजगारी को नहीं समझेंगे, तब तक हम महंगाई को ठीक से समझ नहीं सकते। क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो सबसे पहले गरीब और बेरोजगार की थाली से खाने पीने की चीजें गायब होने लगती हैं। जब महंगाई बढ़ती है तो गरीब के की जो जरूरी वस्तुएं होती हैं, उस गरीब को उसमें, उस बेरोजगार को जरूरी वस्तुओं से कटौती करनी पड़ती है। लेकिन मान्यवर, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि गरीबी और महंगाई की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों में मतभेद हो सकते हैं। लेकिन ये सम्मानित सदन और देश की आम जनता
इस बात से सहमत नहीं हो सकती है कि आजादी के 59 वर्षों के बाद भी देश के लगभग 80% लोग महंगाई और गरीबी के कारण बेहद अपमानजनक स्थितियों का सामना कर रहे हैं। रोजमर्रा की वस्तुओं में महंगाई जिस तेजी से बढ़ी है, उससे इस देश का गरीब, इस देश का बेरोजगार, इस देश का मजदूर, इस देश का किसान सभी प्रभावित हुए हैं। महोदय, अंग्रेजों की 200 वर्ष की गुलामी के बाद जब ये देश आजाद हुआ था, तो देश की बहुसंख्यक जनता पे उम्मीद जगी थी कि स्वतंत्र भारत में उन्हें गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई एवं गैर बराबरी की व्यवस्था के कारण अपमान से छुटकारा मिलेगा। लेकिन आजादी के 69 वर्षों के बाद भी क्या इस देश की बहुसंख्यक जनता को इन चीजों से छुटकारा मिला? ये सम्मानित सदन से मैं जानना चाहता हूं, क्या आज भी आजादी के 69 वर्षों के बाद भी गांव में, देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कारगिल से लेकर के कोहिमा तक, पूरे देश में कि जो गांव हैं जिनमें महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, उनमें आज भी व्यक्ति जात के साथ पैदा होता है और जात के साथ मर जाता है। लेकिन हमारे देश के नीति निर्माताओं ने, हमारे देश में शासन करने वाली राजनीतिक पार्टियों ने इन गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई पर चर्चा तो की, नीतियां तो बनाई, लेकिन उनको जमीनी हकीकत पे उतारने का काम नहीं किया। क्या कारण है मानवर? जो देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्व को शांति का संदेश देने वाला भारत आज गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, महंगाई और प्रतिशोध की ज्वाला में जलने वाला देश बन गया है। क्या कारण है कि हमारी राजनीतिक पार्टियों ने अतीत के भारत का गौरवगान तो किया, लेकिन अतीत के गौरव को हासिल करने के लिए लेस मात्र भी प्रयास नहीं किया। इसका प्रमाण है कि आज भी इस देश में मौजूद गैर बराबरी की व्यवस्था, गरीबी, बेरोजगारी के कारण अपराध की दुनिया में पलायन करता नौजवान, आत्महत्या करता देश का अन्नदाता किसान, आधी से ज्यादा आबादी आज भी मानवर देश में देश की जो आधी से ज्यादा आबादी है आज भी खुले में सोच करने पर मजबूर है। क्या कारण है? क्या कारण है कि हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे वो सत्ता पक्ष में हैं वो या जो आज विपक्ष में बैठी हैं, उन राजनीतिक पार्टियों ने क्यों नहीं इस देश की बहुसंख्यक जनता को मान सम्मान, सम्मान से जीने का अधिकार देने का काम किया? मानवर, ये भारत जो जियो और जीने दो की भावना में विश्वास रखता था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांत का प्रतिपादन तथागत भगवान बुद्ध ने इस देश में किया था, आज उस सिद्धांत की हत्या हो गई। आज इस देश में पूंजीपति हिताय, उद्योगपति सुखाय का नारा पूरे देश में लगाया जाता है। हमारे सरकार में बैठे लोग जब 16वीं विधानसभा के 16वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए थे, तो इन लोगों ने बड़े जोर शोर से नारा लगाने का काम किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इन्होंने बड़े जोर जोर से नारा लगाया था, महंगाई देश को छोड़कर जाने वाली है क्योंकि अच्छे दिन आने वाले। इन्होंने नारा लगाया था, बीजेपी का पहला काम लगेगी महंगाई पर लगाम। इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास। लेकिन मानवर, आज जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हमारे तमाम सीनियर सम्मानित सदस्यों ने महंगाई के कारणों पर विचार किया कि जमाखोरी के कारण, बिचौलियों के कारण महंगाई बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से मानवर, जो इन्होंने नारा लगाने का काम किया था कि सबका साथ सबका विकास, वो नारा सच्चाई में नहीं था। सच्चाई में नारा इनका यह है कि पूंजीपतियों का साथ और पूंजीपतियों का विकास। सबका साथ सबका विकास इनका नारा नहीं।
अगर सबका साथ सबका विकास इनका नारा होता तो चुनाव के दौरान जिन इस देश के उद्योगपतियों से इन्होंने सहयोग लेकर के बड़े बड़े प्रचार करके जनता को गुमराह करके वोट लेने का काम किया था और सत्ता में आए थे, और आज सत्ता में जब पूर्ण बहुमत के साथ आ गए तो अभी हमारे मित्र कह रहे थे इधर के लोगों को कि 44 पर आ गए। मैं एक शेर के माध्यम से अपने मित्रों को समझाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कि बुलंदी किसके हिस्से में देर तक रहती है। बुलंदी किसके हिस्से में देर तक रहती है, बड़ी ऊंची इमारत हमेशा खतरे में रहती है। इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि आज ये इनका वो दौर भी था कि जब 2 थे, आज ये पूर्ण बहुमत के हैं। हमने जब से राजनीति में होश संभाला है 1980 में थम्पिंग मेजॉरिटी में कांग्रेस की गवर्नमेंट भी देखी है और वो सरकार भी आज 44 पर आ गई है। कारण जो जनता वोट देकर के इस देश की पार्टियों को सर पे बिठाने का काम करती है, शासन पे बिठाने का काम करती है, वही जनता के साथ जब छल वाबा होता है, उसके साथ धोखा होता है, तो वो जमीन पे भी मिलाने का काम करती है। मान्यवर महंगाई को नियंत्रण के लिए भी इन्होंने वादा करने का काम किया था। महंगाई को नियंत्रण करने का इन्होंने वादा किया था कि महंगाई को नियंत्रण रखने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाने का काम करेंगे। इन्होंने कहा था किसान अन्नदाता होता है जो पूरे देश के लोगों का पेट भरने का काम करता है। किसान अन्नदाता सुखी भव का इन्होंने नारा देने का काम किया था और ये कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो कोई भी किसान की उपज को 1.5 गुना मूल्य देने का काम करेंगे। 2 वर्ष हो गए, 2 वर्षों में आजादी के इतिहास में अगर हम देखें तो किसी भी सरकार के समय 2 वर्षों के कार्यकाल में जितना किसानों ने आत्महत्याएं की उतनी किसी सरकार में आत्महत्याएं नहीं की।